We have a very special guest joining us this evening. With us is Danish Kaneria, former Pakistan leg spinner. Thank you so much, Danish, for joining us here on Times Now. First and foremost, let me begin by asking you, what do you make of Pakistan's performance so far in the World Cup? 3 back-to-back losses, including against Afghanistan. First of all, thank you very much for having me on Times Now. And namaskar, salam, jai Shri Ram. Habiko. First of all, the Pakistan selection committee made a blunder selecting a wrong squad for this World Cup, which is happening in India. They didn't realize that it's a spinning friendly wickets in India with the batting track on. Beautiful tracks have been made by the ground staff. Pakistan missing the content, missing that line for their lineup, like different type of bowlers. They don't have Naseem Shah who can bowl with Shaheenshah Afridi. Shaheenshah Afridi is not bowling that well in this World Cup. He's not getting that swing, that length is not getting it. And then the way Pakistan team batted against India, 8 wickets down, 33 runs only. They are not gelling it well. The captain is not in a frame of mind. He's not coping up with the pressure. And then the most important part is they are talking more and working hard less. So you have to work hard very much. And the defeat against Afghanistan, definitely Afghanistan was on the top. And Pakistan not playing at that level, winning the toss, batting first. Everybody is batting second because of dew factor of this time of weather in subcontinents like India, Pakistan, cold weather, the dew comes in, the light comes into play, the wicket gets flatter, it gets easier to play. And they played 4 spinners, Afghanistan. Pakistan only went with 2 regular spinners, which are both the similar type of leg spinners, which are not bowling well, as like the likes of Shadab and Osama Mir. They didn't play Nawaz on that track. He should have been played in that track. Osama should have not played. And the game against Australia, Chinnaswamy, they didn't play Shadab Khan over there, who can bat good down the order. So everything is messed up with the Pakistan team. The coaching staff definitely is a main factor, because what he's talking is talking about out of the context. No, this is BCCI event, this is that, Dil Dil Pakistan song and all that of stuff. They're not talking about strategy. They're not planning what you have to do. Right. I'm going to come to those points that you just made in just a few minutes. I want to stick with the cricket part though, because there's been a lot of criticism about the fitness of the Pakistan team. Wasim Akram jokingly said that the Pakistani cricketers are having 8 kilos of nihari every day. He's also said that when Misbah ul Haq was coach, there were fitness criteria in place. Players hated him, but it worked. Fielding is all about fitness. That's where we are lacking. Is there no fitness criteria in place now, as is being discussed? Yes, fitness is there, definitely. Fitness is there, but when they're at their work, like Misbah was the head coach, then he became the selector, why they don't put that thing that the guys are not listening to us? We need to make sure that fitness area is always there. And after now, they're sitting on the channels and saying this all stuff. But the thing is that they are not talking about the mentality. The mentality is not strong. They are playing as a weak cricketers. As we say, like gussa, aggression, jazba, that is not coming from the place. That's the main thing which Pakistan is lacking in this World Cup. Pakistan is not playing with full aggression. They are, because at the start of the World Cup, when the venues came, they just started saying, oh, we will not play in Ahmedabad. The wicket suits India. We will not play in Chennai. The wicket suits Afghanistan. Come on, yaar, guys. You're an international cricketer. You have to be professional. You have to play on any surface to get on. You don't have to make excuses. So that's the main important reason why Pakistan is losing, because they're already scared of this condition, firstly only. If you say, okay, yaar, whatever conditions comes up, we will come up and play. We will give our 100%. We will make sure that we play like an aggression. We need to have that aggression. We need to play hardcore cricket, whatever is, okay, we are playing against odds, okay? But we have to come up and play good and better cricket, because we have traveled to India. When we used to play bilateral series, we used to play like tigers, like the aggression was there. Even on me, Shoaib Akhtar used to bowl from other end, Sami and the other bowlers as well. Partnership in bowling, partnership in batting, how Inzamam used to bat, Yunus Khan, Yusuf, all we used to bat like it was a different era. Now they are just playing like baby cricket. They're like, I don't understand why there is no aggression. People love to see that Pakistan play extraordinary cricket. They want Pakistan to come up because people like Pakistan team. But the way they are playing with no aggression, they are playing with the fear. That's the most important thing. I don't know where this fear has come in from them. That's why they are not playing good cricket.
Right. Danish, today you have tweeted, मंदिर बन जाए, फिर दर्शन करने आएंगे. Tell us about what the Ram Mandir means to you. The consecration ceremony is supposed to be held on the 22nd of January. कितना महत्वपूर्ण मोमेंट है ये आपके लिए? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मोमेंट है। और श्री राम का तो मैं बचपन से, और श्री हनुमान जी का बचपन से आई फॉलोड, एंड श्री राम के चरित्र पे और श्री राम पर भगवान के जिस लाइफ जर्नी पे अगर हम वो, हमें संसार में बहुत कुछ जीवन सिखाती है। कितनी भी परेशानी हो लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और फाइट करते रहना चाहिए, अपने धर्म के साथ रहना चाहिए। और सनातन धर्म ही हमारा ऐसा धर्म, खूबसूरत प्यारा धर्म है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे धर्म का। श्री राम भगवान के मंदिर, भगवान ने मौका दिया, श्री राम जी ने बुलाना हुआ तो मैं जरूर श्री राम जी के मंदिर पे दर्शन करने आऊंगा फैमिली के साथ सब लोग, क्योंकि उनकी जो जर्नी है श्री राम, देखिए श्री राम, जय श्री राम हम कहते हैं तो इट्स अ ग्रीटिंग। आपने मुझे जब इंट्रोड्यूस किया तो मैंने कहा जय श्री राम। जिस तरह इन लोग कहते हैं सलाम, तो हम हमारे में है जय श्री राम, राम राम, नमस्ते, क्योंकि बिलोंगिंग टू गुजराती फैमिली, गुजराती कम्युनिटी, गुजराती, तो मैं अपने धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आई जस्ट लव टू बी, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू। और मैं हूँ, आई एम अ बॉर्न हिंदू, आई विल डाई हिंदू। तो मेरे लिए राम भगवान का जो मंदिर है वो एक बहुत बड़ी चीज है। और भगवान ने जब बुलावा देंगे तो जरूर आऊंगा वहां दर्शन करने, अपने माथा टेकने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, और राम भगवान की जो जीवन है, उनकी जो रामायण है, उसको आप अगर देखें कि उनके पास सारी शक्तियां थी। वो एक ही बाण में मार देते रावण को, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया 14 वर्ष वनवास का। ये सिखाती है सीख के यार, आपको पावरफुल नहीं होना चाहिए, आपको ह्यूमैनिटी चाहिए। राम भगवान का जो अगर आप देखें मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे अपने फैमिली के ऊपर, फिर अपनी वाइफ सीता माता के ऊपर, उन्होंने सब कुछ किया लोगों के लिए। लोगों का जब उनको किंगडम मिला तब उन्होंने सीता माँ का जो लोगों ने बात की थी उसके बाद के ऊपर उन्होंने उनको छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी अब देखे एक दफा शादी करी और सीता माता के साथ। और ये हमारे जीवन में बहुत लेसन देता है, और मैं तो उसको इतना क्लोजली देखता हूँ ना, क्लोजली फॉलो करता हूँ कि जीवन में हर परिस्थिति आएगी। आपकी वाइफ के साथ सिचुएशन कभी ऐसी होगी, कभी संसार के अंदर आपको डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन यू हैव टू बी ब्रेव एंड बिलीव इन भगवान, इन धर्म एंड इन राम भगवान के थिंग्स विल गेट बेटर। विश्वास होना चाहिए। तो मैं तो भाई उस पर बहुत बिलीव करता हूँ जी। Sticking to Jai Shri Ram, incidentally, you said that it's a greeting, but here there's been criticism from some quarters, even in India, about Jai Shri Ram slogans being raised in front of Pakistan cricketers, especially during the India-Pakistan match that took place in Ahmedabad. इसको आप किस रूप से देखते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल दिल पाकिस्तान प्ले नहीं हुआ था, इस तरह के भी आरोप हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? यार। मैं तो ये आरोप को बहुत ही, कोई लोग ये बात कर रहे हैं तो दे आर नॉनसेंस, और उनके पास वो एजुकेशन नहीं है। पहले जय श्री राम का मतलब है वेलकम करना, आपको वेलकम कर रहे हैं। आप जब इंडिया की सरजमीन पे पहुंचे वर्ल्ड कप खेलने, आपका स्वागत के साथ जबरदस्त तरीके से किया गया पाकिस्तान टीम का। वो कोई बात नहीं करता है कि वहां पर भी जब हम बायलैटरल सीरीज करते, जब इंडिया पाकिस्तान आई थी तो हमारे कुछ ग्राउंड के करीब में मस्जिदें हैं, वहां पर अजान होती थी, रिस्पेक्ट वो भी करते, हम भी करते, हम सब रिस्पेक्ट करते। तो इसके अंदर ये गलत बात क्या हो गया? अगर दिल दिल पाकिस्तान पे क्यों सुनना है? मतलब कोच साहब दिल दिल पाकिस्तान सुनेंगे तो उनको जज्बा मिलेगा, भाई तू कोच है या तू डीजे है, पहले तो ये बता दे। मतलब ये सारी बातें करके मुझे तो वो बस अटेंशन अपना मांगते हैं कि हमारा अटेंशन बना रहे, हमारी दुकान चमकी रहे, और हम जो है ट्रोल होते रहे, ये होते रहे। मेरे ख्याल से ये चीजें के ऊपर तो मैं नहीं समझता हूँ कि यार, पहले भी हम आए खेलने, हम भी खेलते थे, सब कुछ होता था, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और कोई मतलब स्लोगन तो सब जगह होते हैं, सब जगह लगते हैं, इट्स ओके। You are a professional, you cope with that, you play with that, you take that pressure if you have that pressure। लेकिन इसमें बात क्या करने वाली हो गई कि यार जय श्री राम हम नारे लग रहे थे, तो क्या हो गया भाई? जय श्री राम, हम सब राम भगवान के वो है, आप भारत भूमि में हैं तो जय श्री राम ही होगा ना भाई। जी, और आपकी एक ट्विटर पे स्पैट भी हुई थी विद एन इंडियन जर्नलिस्ट व्हेन यू सेड कम टू माय कंट्री पाकिस्तान इफ यू फील अशेम्ड टू बी इंडियन। आई एम श्योर there are many people in India who will be happy to sponsor this trip. So क्या कहना चाह रहे थे, क्या हाईलाइट करना चाह रहे थे आप उनको? मैं हाईलाइट ये चाह रहा था, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आ जाए पाकिस्तान, वेलकम करते हैं भाई आपको। आप आ जाए, वहां पर आपको प्रॉब्लम है, वहां पर आप रह के वहां पर अपना सारी चीज करके आप बात गलत करोगे तो फिर क्यों करते हो? मैंने तो नहीं देखा यार। इंडियंस आर वेरी पेट्रियोटिक, जितने
जितने इंडिया में भी कितने ज्यादा मुसलमान तादाद है, दे आर वेरी पेट्रियोटिक, दे लव देयर कंट्री, वो तो कभी ऐसी बात नहीं करते। आपको एक जर्नलिस्ट है, आप वो है, आप इस तरह की बातें करते हो, तो भाई इतना ही आपको प्रॉब्लम है तो आ जाओ भाई, सिंपल एज दैट। किसी की भावनाओं को ठेस मैं तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूँ, ना मेरी आदत है। मैं सिर्फ अपने, जब भी होता है कि मेरे लिए सिर्फ धर्म है, और धर्म के ऊपर कोई बात करेगा तो मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे धर्म पे कोई बात करे। But were you surprised when a BJP spokesperson, Gaurav Bhatia, actually defended the Indian journalist despite the fact that ideologically they have been at odds? What do you make of Mr. Bhatia's intervention? क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाए थे? क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? यार, मैं तो पहले उनको जानता नहीं हूँ, कौन है, कौन सी पार्टी से है, क्या है, लेकिन उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और उनको उस प्रकार से जवाब देना चाहिए था। मैं समर्थन अपने अपने धर्म का, या मेरे अपने धर्म के ऊपर कोई बात करेगा, या मेरे अपना उसके ऊपर बात करेगा, तो मैं तो बोलूंगा ना। तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो वो बातें कर रहे हो ठीक है। देखिए, भगवान की दया से जनता है, और जनता ने उनको जवाब दिया। मैं तो बहुत ही मामूली सा आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ अपने धर्म, भाई आप देखो कि क्या बात चल रही है, आप उस पर बात करो ना, आप उसको समर्थन दो, आप उसको वो करो। आप अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हो, आप अगर ऐसा ही आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप या तो चुप रह जाओ, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप चुप रह जाओ, या तो आप बेकार के अंदर आके वो बात करने। आई थिंक समझ नहीं आती लोगों को, कि लोग समझते नहीं है। जो ट्वीट करता हूँ या जो करता हूँ उसको पहले ध्यान से पढ़े, फिर आप बात करें ना। आप बीच में आके ऐसे ही सपोर्ट करने लग गए, और वो भी उनको जो अगेंस्ट है। आई डोंट नो व्हाई। जी और दानिश आफ्टर द एंटायर इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन अहमदाबाद पीसीबी हैज कंप्लेन टू आईसीसी अबाउट हाउ पाकिस्तान टीम वाज ट्रीटेड देयर आप अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताइए हाउ इंडियन टीम्स हैव बीन ट्रीटेड इन पाकिस्तान एक क्रिकेटर है एल शिवरामकृष्णन उन्होंने आपके एरिया से पहले तो उन्होंने खेला है लेकिन उनका ये कहना है कि उनको अपने रिलीजन उनके कम्प्लेक्शन पे पाकिस्तान में मॉक किया गया था आप इसे कैसे देखते हैं दोनों चीजों को पीसीबी यार कंप्लेंट देखिए, और आप शिवराम कृष्णन खेलते, के कमेंट को यार जैसे आप खेलते डेफिनेटली, अपना जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है, क्राउड में से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आवाजें देता है। हम भी जाते थे इंडिया में, क्योंकि मैं हिंदू तो हूँ, लेकिन पाकिस्तान से खेल रहा था, तो बाउंड्री पे आवाजें आती रहती है, वो लोग बोलते रहते हैं, ठीक है उनका काम है यार लेकिन उसको इतनी बड़ी चीज क्या बना देनी। और पीसीबी को क्या जरूरत है कंप्लेन की, सुनेगा कौन भाई? कौन सी कंप्लेन, क्या तुम्हारा नहीं किया? क्या आपको खाना नहीं दिया गया अहमदाबाद के स्टेडियम में, अहमदाबाद के होटल में आपको खाना होटल में नहीं दिया गया? या आपकी सिक्योरिटी में कमी कर दी, आपको लेके आने जाने में आपकी कमी कर दी, आपकी जो चीजें है वो करने कमी कर दी? जय श्री राम पे आप कंप्लेन करोगे? भाई जय श्री राम क्यों लगा? ये कौन सी बात हो गई यार? सेंस नहीं बनता है बॉस। मुझे तो ये पढ़े लिखे नहीं लगते, इलिटरेट रहते हैं, कि वो ऐसी चीजों के ऊपर कंप्लेन लॉन्च करते हैं, ऐसी चीजों पे उनकी सुनेगा कौन? क्या है हम्म भाई, बोला है ना। तो मतलब कि यार, ये बहुत ही अजीब और गरीब हरकत करते हैं। और मेरे ख्याल से जब इंडियन टीम पाकिस्तान भी आई थी, जब हमारे टाइम पे, तो इनको बड़ा जबरदस्त वेलकम किया गया था, और इन्होंने शॉपिंग गए थे बहुत, हम भी आए थे तो हमें भी बहुत खातिर तवज्जो की गई थी इंडिया में। ये बड़ा जबरदस्त जेस्चर होता है। अभी थोड़ा सी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, वो आ गया, ये सब चीजें आना शुरू हो गई है। हमें भी, मुझे याद है कि बेंगलोर का टेस्ट मैच था, और मैंने जब बालाजी को आउट किया था, मैं उससे 5-6 ओवर पहले वॉशरूम आया था, और जब मैं वापस जा रहा था तो लोग मुझे भी कह रहे थे, ये वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। आई डोंट वांट टू शेयर के वो। तो मैंने, मेरा काम क्या था, ओके, मैं जाके वहां अपना काम करके आऊंगा, अपनी टीम को जिताऊं। तो मैंने वहां जाके टीम को जिताया, दैट्स द आंसर। हमने तो नहीं बोला कि भाई हमें क्राउड वाला ये बोल रहे थे या वो बोल रहे थे। तो मतलब इसमें क्या हो गया? इतने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स गुजर गए, आए हैं, लेजेंड बन गए हैं, बहुत को सब कुछ को कुछ ना कुछ बोला दिया जाता था, बोलते थे, ये वो करते थे। तो उसमें क्या हो गया? आप प्रोफेशनल हो ना, आप अपना वो प्रेशर लो ना, अपने ऊपर खेलो यार। जी बचकानी बातें करते हैं बॉस, मुझे तो ये ऐसा ही लगता है। जी आपसे ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जो जाका अशरफ हैं पीसीबी चीफ उन्होंने भारत को दुश्मन मुल्क बोला था सितंबर में आप इस तरह के रिमार्क को कैसे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी कंट्रोवर्सी थी उसके बाद कि दुश्मन मुल्क के रूप में आप कैसे देख रहे हैं आप यहाँ आ रहे हैं क्रिकेट खेलने और उसे दुश्मन मुल्क भी बुला रहे हैं भाई, एक तो आपको पता है पाकिस्तान में हर हफ्ता 2 महीने में चेयरमैन तो चेंज होते रहते हैं। जो जब जब टाइम मिलता है उनको, वो थोड़ी दुकान चमका देते हैं। पहले रमीज राजा साहब है, वो इंडिया में कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने पहले कहा था कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, टीम नहीं भेजूंगा। ये अभी खुद भी गए हुए वहां पर, क्यों चले गए? भाई माल मिल रहा है तो चले गए ना। इंटरव्यू भाई वो है, भाई चलो भाई काम मिल गया इंडिया में। ये सब लोग ऐसे ही करते हैं कि
सुबह उठेंगे इंडिया, रात को उठेंगे इंडिया, फिर इस पे बात करेंगे। आप देखिएगा वर्ल्ड कप के बाद ये जितने लोग सब, जब ये वर्ल्ड कप खत्म होगा जाएंगे वापस, तो ये सब शुरू हो जाएंगे कि वहां पर ये ऐसा है, हमें तो ये करना चाहिए था, इन पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, वहां पर पाकिस्तान को ट्रीट नहीं किया गया, ये वो। अभी सब चुपचाप बैठे हुए, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये ज़का अशरफ साहब को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। पहले आप अपने ताल्लुकात देखो। मैं तो 10,000 दफा बॉस कह चुका हूँ, आप ऐसी भाषा करके अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते हो जहां आप अभी दुश्मन मुल्क कहते हो। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि गांधी कायदे आजम ऐसा कुछ करके ना ट्रॉफी करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की, वो बायलैटरल सीरीज टाइप, इस तरह के, जैसे वो होती है एशेज होती है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, तो इस तरह की कोई ट्रॉफी करनी चाहिए। आप ये बात भी करते हो, फिर ऐसी भाषा भी यूज करते हो, तो ताल्लुकात अच्छे बनाने के जगह आप तो ताल्लुकात खराब कर रहे हो ना। आप क्या उम्मीद रखते हो कि आपको क्या बोले जी? तो ये I don't really get it that why they use this type of languages, like this type of, you are at the Hall of Fame, आप टॉप पे बैठे हुए हो, be humble, be humble to everyone and be a humanity यार, इज्जत करो सबकी, जी सबकी इज्जत। जी ऐसी भाषा तो मैं समझता हूँ कि एक जो है, ऐसी भाषा के ऊपर मेरे ख्याल से आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए कि कोई ऐसी कंट्री जो क्रिकेटिंग नेशन आपस में खेल रहे हैं वो इस तरह की बात नहीं करे, पॉलिटिक्स को ना लेके आए बीच में। जी। और दानिश, एज ए हिंदू, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट वेयर पाकिस्तान इज हेडेड? डू यू फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट? या डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन यार मेरे साथ हुई है, मेरा कैरियर तबाह कर दिया, सबने अपनी दुकान चमका ली, मुल्क को बेच के सब कुछ कर लिया, मेरा कैरियर तबाह कर दिया। जिसने कुछ किया भी नहीं, खाली मेरे पर एलिगेशन था, तो मैंने माफी मांगी, वो नहीं मिली मुझे, और मुझे कन्वर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा बोलते रहे, कन्वर्ट हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं थक गया हूँ था बॉस, मैं अपना बहुत थक गया था, मतलब कि इनकी सुन सुन के मैं इतना परेशान, बहुत स्थिति खराब थी, मतलब कि परेशानी के आलम में था। ना ये कोई जॉब करने देते थे, ना कुछ करने देते थे। बस मैं, जब श्री राम भगवान पे पूरा भरोसा है और हमेशा रखा हुआ है कि, और ये डिस्क्रिमिनेशन तो है ना बॉस, डिस्क्रिमिनेशन तो था ना, क्यों नहीं आया मेरे बाद कोई माइनॉरिटी से प्लेयर खेलने पाकिस्तान के लिए? ये डिस्क्रिमिनेट करते थे और बहुत ज्यादा किया है। शोएब अख्तर ने खुद रिवील भी किया था इस चीज को 2019 में बोला था शोएब अख्तर ने। जी हाँ, तो फिर मैं क्या बोलूं, मैं को अपना, बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे, सिर्फ एक इंजमाम उल हक थे जो कैप्टन थे मेरे, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और यूनिस खान मुझे सपोर्ट करते थे, और मतलब ये शाहिद अफरीदी का एवरी टाइम मुझे टॉन्ट करना है, भगवान ये करना वो करना है, तू हिंदू है, बहुत बहुत सारी चीजें। तो बस थक गया था मैं अपने, मेरा तो हमेशा से यही था कि भाई जब तक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो टीम में हूँ, जिस दिन मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे बाहर कर देंगे। उनको पता है कि टेस्ट जब खेलता था तो मुझे अगर कंटिन्यूस जो वनडे खिलाते, क्योंकि वनडे में अफरीदी था, तो अफरीदी के अगर पता है कि ये आ गया तो ये विकेट लेना शुरू कर दिया, मेरी जगह चली जाएगी। तो मतलब कि इस तरह की ये हरकतें सोचते थे, सोच ऐसी थी, और इसकी वजह से मेरा एक अच्छा पीक था। उनको पता था कि अगर ये लंबा खेल गया तो ये सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिस स्पीड के साथ में विकेट ले रहा था। अगर मैं कन्वर्ट हो जाता तो मैं भी शायद कप्तान होता पाकिस्तान का, और मैं शायद 100 टेस्ट भी खेल जाता सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने जितने लोग जेल गए थे उनको इन्होंने कमबैक करवाया। एक बंदा जो है कमबैक करके पाकिस्तान को बुरा भला करके, वही बोर्ड ने उसको लेके आया, आज वो इंग्लैंड में जाके सेटल हो गया सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए, क्योंकि माल मिलेगा, क्योंकि वो आईपीएल जा सकता है। ये इनकी सोच है, लेकिन मेरी सोच तो कभी ऐसी नहीं रही। मैं तो चुपचाप अपनी क्रिकेट खेलता हूँ और अपना चुपचाप अपने भगवान के अंदर वो करता हूँ, भगवान की बात ऑन दैट शिट। सवाल इन इसलिए लोग मुझे इतना सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं दानिश आपसे, सॉरी, कि अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ, जो देश की शान जिसको लोग मानते हैं, उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम नागरिक की क्या हालत होगी? क्योंकि आए दिन ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि जो माइनॉरिटीज हो, चाहे हिंदूज हो, सिख्स हो, उनके साथ अत्याचार होते हैं, घिनौने अत्याचार, यंग गर्ल्स के साथ आप देखते हैं अपहरण किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। माइनॉरिटीज के लिए कितना सेफ है पाकिस्तान? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। या मेरे ख्याल से तो सेफ नहीं है। जो जो चीजें आती है, हाईलाइट होती है, वो मैं उस पर आवाज उठाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी माइनॉरिटी जितनी कम्युनिटी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको आवाज उठानी चाहिए, और जितना मेरे से हो सकता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स अ वेरी डेंजरस, और मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला आलम है बॉस। आप एक मेरे क्रिकेटर के साथ देखा इन्होंने क्या किया, कैरियर तबाह कर दिया सब कुछ, और मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करी, कभी भी मेरे लिए नहीं आवाज उठाई। वहां पर आप ये देखें, इंडिया में देखें कि एक फेलो क्रिकेटर जब एशिया कप हो रहा था, वहां पर शमी को बहुत ट्रोल किया गया था, तो एकदम से आया था ट्वीट आया था विराट कोहली का। तो ये टीममेट्स होते, ये टीम मैन होते कि अपनी टीम को
कोई भी मजहब का है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है आए हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी से है, डिफरेंट कास्ट कलर से, सबको रिस्पेक्ट दी जाती है, सबके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ इन्होंने इतना गलत किया और सारा मेरा कैरियर मेरे पे धब्बा लगा दिया। जो आरोप मेरे पर है भी नहीं, सारी एक अजम्पशन पे था, अजम्पशन के ऊपर केस बना के मुझे वो कर दिया। और आईसीसी ने तो बैन नहीं लगाया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया। तो मैं तो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा चैनल है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल, और इसके माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा कि मेरे मैटर को देखे, और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ऊपर से ये जो आरोप है वो अपना खत्म किया जाए, क्योंकि सबको क्लीन चिट मिल गई। मैं भी अपने जीवन में जब दुनिया से जाऊं तो एक क्लीन चिट लेके जाऊं। जी, ये अपील कर रहे हैं आप, आपके इमोशंस मैं समझ सकता हूं, बहुत मुश्किल वक्त से आप गुजरे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, दानिश, आप सीए, एक जो कानून यहाँ बनाया गया है भारत में, ये फास्ट ट्रैक करता है सिटीजनशिप का उन हिंदूज, क्रिश्चियंस, जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट और पारसीज के लिए पाकिस्तान और अन्य देशों में जिनके ऊपर किसी तरह की परसिक्यूशन हुई हो। आप इस कानून को कैसे देखते हैं और उसकी मेरे ख्याल कितनी से जरूरत अच्छा आप कानून समझते है, हैं? अच्छा कानून है, और मेरे ख्याल से ये लेके आए हैं, इंडिया में बनाया है कानून, तो इसको डेफिनेटली सपोर्ट करता हूँ। और जो लोग दे हैविंग अ प्रॉब्लम वो इसको यूज करें और जाए, एंड दे विल बी वेलकम ओवर देयर। जी, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसमें मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसे? अगर मुस्लिम को, अगर उनको लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम है, उनको भी उस जगह पर प्रॉब्लम है, उनको डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करें। तो लेकिन वो है ही अपना माइनॉरिटीज के लिए बेसिकली, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई गलत चीज नहीं है। अगर उनको इंक्लूड नहीं किया गया तो इट्स ओके, दैट्स फाइन, दे डोंट वांट। Right. Danish Kaneria, for speaking your heart out and sharing with us the very difficult moments that you have been through. I thank you so much for joining us here on Times Now and wish you all the best. Thank you very much. Jai Shri Ram. Thank you.